तो यही और तो आज कुछ नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से बार बार आप कनेक्शन लॉस हो जा रहे हैं, कभी वॉइस नहीं आ रही है। तो अभी तक तो जो हमने एक्सप्लेन किया था तो वो हमें सस्पेंशन ड्रग के बारे में एक्सप्लेन किया था, और उसके बाद लिक्विड डोजेज के बारे में अभी मैंने बताया। ओरल लिक्विड डोजेज जो है आपकी, वो लिक्विड डोजेज वो है जो हमको ओरली लिक्विड फॉर्म में पीने के लिए दिया जाता है, जैसे आपकी कॉफ सिरप्स। ठीक है। और ये जो कॉफ सिरप, ये मैं थर्ड टाइम बता रही हूँ, बट ये है कि वो बार बार कनेक्शन लॉस की वजह से आज आज मेजर कनेक्शन लॉस बार बार हो रहा है। शायद यहाँ पर नेटवर्क इशू है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम ना क्लास को बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि बार बार नेटवर्क इशू हो रहा है। फिर भी मैं जितना हो सकता है बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो जो आपका ओरल लिक्विड डोजेज है, जैसे आपका, मैं इसका एक डायरेक्टली एग्जांपल दूं तो उसका कफ सिरप की फॉर्म में आप एग्जांपल मान सकते हो। तो ड्रग आर कॉमनली गिवन इन सॉल्यूशन इन कोल्ड एंड कफ, कि जितने लिक्विड डोजेज हैं हम एल्डरली को और स्मॉल चाइल्ड्स को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं देने के लिए। दे सबको सकते हैं, लेकिन drug is commonly given in solution in cold cough remedies and in medicine of young and elderly. In the most cases, absorption from oral solution is the rapid and complete compared with administration in any other oral dosage form. The rate limiting step. चुप करा लेना प्लीज। In most cases, absorption from the oral solution is rapid and complete compared with the administration. Background voice को please अभी थोड़ा सा ignore करें। Compared with administration in any other oral dosage form, the rate limiting step is often the rate gastric emptying. When an acidic drug is given in the form of salt, it may precipitate in the stomach. ये जो आपका लिक्विड डोजेज है ये पूरा का पूरा प्रेसिपिटेशन पर है, जाएगी अंदर, प्रेसिपिटेट हो जाएगी, बॉडी में चली जाएगी। However, this precipitate is usually finely divided and readily dissolved, redissolved, and thus causes no absorption problem. There is a possibility with a poorly water soluble drug such as phenytoin that, well formulated on suspension of finely divided, may have a better availability, means the bioavailability जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. Some drug which are poorly soluble in water may be dissolved in mixed with water और ग्लिसरॉल सॉल्वेंट्स. कुछ कभी कभी हमको जो ये लिक्विड ड्रग दिए जाते हैं, ये ये पाउडर फॉर्म में दिया जाता है और उसके साथ में एक सोल्यूशन दिया जाता है. वो सोल्यूशन आपका ग्लिसरॉल सोल्यूशन है या वाटर सोल्यूशन है, उसके अंदर मिक्स करके आप उसे यूज कर सकते हो, फिर से सॉल्यूशन बना सकते हो ओरली लेने के लिए. This is particularly useful for compound with tight crystal structures, however, higher melting points, and with not ionic. This crystal structure is broken by solution in a mixed solvent, and oily emulsion or soft gelatin capsules have been used in some compounds to produce and improve. जिलेटिन कैप्सूल के बारे में भी मैंने अभी बताया था. जिलेटिन कैप्सूल एज अ कैरियर यूज होता है आपकी ड्रग को अंदर रखने के लिए, लेकिन वो क्यों नेटवर्क इशू की वजह से वो वॉइस नहीं आ रही थी.
फिर से बताऊंगी अभी। उसको हम इसको हम एज अ कैरियर यूज करें, इसको एलिसिट बोलते हैं, शुरू में बताया था मैंने। Suspension dosage form. A well-formulated suspension is second only to a solution in the terms of superior bioavailability. Absorption may well be dissolution limited. However, a suspension of a finely divided powder will maximize the potential of the rapid dissolution. A good correlation can be seen for particle size and absorption rate. Means particle size और absorption rate से हम इसका निकालते हैं कि सॉल्यूशन इसका कितनी ड्यूरेशन में बन जाएगा, सॉल्यूशन ड्यूरेशन रेट और absorption रेट से। With a very fine particle size, the dispersibility of powder becomes important. The addition of a surface active agent will improve the dispersion of suspension, may improve the absorption of very fine particle size suspension. Otherwise, caking may be having problem. As a suspension ages, there are potential and increased particle size with accompanying decrease in dissolution rate. Smaller particles have higher solubility and will tend to disappear with the drug coming out of the solution on larger particles. A parenteral route. Parenteral route means the common route या जो बेसिक रूट, जैसे जिसके अंदर हमारे इंजेक्शंस आते हैं। इंजेक्शंस मीन्स आप इंट्रावीनसली, मीन्स तीन तरह से आप इंजेक्शंस को इंजेक्ट कर सकते हैं, एक इंटरवीनसली, एक इंट्रामस्कुलर एंड इंटर सब्सटेंटेनियसली। इंट्रावीनसली मीन्स थ्रू द वेन्स आप दवाई भेज सकते हैं, जैसे वेन्स को ढूंढ के उनके अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर मीन्स जहाँ पर आपका मस्कुलर मास इकट्ठा हुआ है उस जगह पर हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। और इंट्रा सब्सटेंटेनियसली के लिए अलग से, ये बिल्कुल ही इन दोनों से अलग है। As we have already studied parenteral route, अब भी हमने शुरू में भी पढ़ा था, बट क्योंकि वॉइस ब्रेकेज और वॉइस प्रॉब्लम या जैसे आप नेटवर्क इशू कह सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, मैं दोबारा बता देती हूँ। इन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग बायो अवेलेबिलिटी इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्ट ऑफ द ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रा सब्सटेंटेनियसली इंजेक्शंस। अदर पेरेंट्रल रूट्स आर यूज्ड लेस फ्रीक्वेंटली। तीन यही मेजरली जिसको हम पेरेंट्रल रूट बहुत सारे हैं, पर मेजरली ये तीन आपके यूज होते हैं, जो यूज हो रहे हैं फ्रीक्वेंटली, और इन्हीं के ऊपर रिसर्चेज है सारी। Routes of parenteral administration that can affect bioavailability of drug is listed below. Introduction of drug directly into venous circulation result of 100% bioavailability due to the absence of absorption phase. जितने भी इंजेक्शंस हैं आपके, उनका एब्जॉर्प्शन फेज बहुत कम है, मीन्स अंदर गए और बॉडी में एब्जॉर्ब हुए। ठीक है, उनको ट्रैक की ज़रूरत नहीं है, उनको सॉलिडिफाई टू डिसॉलिडिफाई होने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इंट्रावीनसली, इसलिए इंजेक्शंस आर मोर इफेक्टिव देन डोजेज। उनका टाइम पीरियड कम है इफेक्टिवनेस का, मतलब इफेक्ट जल्दी कर पाती है। 100 introduction to the drug directly to the venous circulation result in 100% bioavailability due to the absence of absorption. Most of the drug administered parenterally in critical patient care settings are injected or infused intravenous due to the rapid and complete bioavailability. Drugs are injected intravenous include antiviral, antibiotics, anti-allergics, anti-nephritis, anti anti-inguinals, antifungal, antibacterial, and other methods.
The intravenous routes of drug administration provides a precise and continuous mode of drug therapy, especially for the drug with a narrow therapeutic index depending on the requirement of drug therapy. This drug can be administered as bolus. Bolus here means जल्दी हो जाता है, quick and fast injection. Intravenous drip, जो फूड भी जब हम फूड आप अपने उससे इनटेक नहीं कर पाते हो तो वो तब आपका वहां से हो पाता है. तो हम ग्लूकोज दे देते हैं ना जैसे इंट्रावीनसली, उसको बहुत जल्दी आराम मिलता है, बिल्कुल वैसे. द इंट्रावीनस रूट शुड नॉट बी यूज टू डिलीवर ड्रग विद लो aqueous solubility since these drugs are may participate in blood and cause metabolism embolism कहते हैं इसको. The rapid bioavailability in intravenous administered drug to systematic circulation can also produce undesirable effect. This can be overcome by injecting the drug slowly over a period of 1 or 2 minutes or longer to avoid excessive high transit concentration of drug in plasma. अब इंट्रामस्कुलर के बारे में जानेंगे. इंट्रामस्कुलर है जो मैंने बताया मसल मास जहां पर रहता है उसके थ्रू हम ले पाते हैं. रूट इज ले दिस लूज. अब इंट्रावीनसली होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि इंजेक्शन में से हम कभी कभी एयर बबल निकालते हैं, कभी कुछ निकाल एयर बबल निकाल देते हैं, या ज्यादा डोजेज आप इंट्रावीनसली एक पर्टिकुलर डोजेज होता है जिसे आप इंट्रावीनसली वेन्स के थ्रू दे पाते हैं. एयर बबल निकालना जहां पर ये मसल मास के थ्रू आप इंजेक्शन देते हो, जैसे बटक्स के ऊपर अपने जो आपका बटक्स अबव बटक एरिया होता है वहां पर जहाँ मास प्रोडक्शन या आर्म्स के फोर आर्म्स के ऊपर जो हम देते हैं वो हम इसलिए उसमें ये आपका हैजर्डियस नहीं होता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है. इसमें आपका जैसे एयर बबल वाला ये सब प्रॉब्लम्स है. एयर बबल आपको निकालना ही चाहिए, बट एयर बबल अगर आपके वेन्स के थ्रू चला जाता है तो ये इट कैन कॉज स्वेयर हैजर्ड्स लाइक हार्ट अटैक ऑल्सो. बट जब अगर हम इसको इंट्रामस्कुलर की बात करेंगे तो ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है. So it is less hazardous है. Then intravenous. Due to a delay in availability of drug to the systematic circulation, drug effect can less rapid but generally of longer duration. Aqueous and analogous solution and emulsious or suspension of the drug may be administered. Intramuscular class of drug administered intramuscularly include antibiotic and antidepressants, antibacterial. सो जो इंट्रामस्कुलर जो मेडिसिन दे सकते हैं वो हजर्डियस नहीं है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. इट कैन टेक टाइम टू एब्जॉर्ब. इंट्रावेनसली आपका जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा बट हजर्डियस नहीं है. थर्ड इज subcutaneous. Subcutaneous injection are usually administered in small volumes. ये इसकी डोजेज बहुत कम होती है. इन द अदर सरफेस, और ये जैसे आपका कोविड का इंजेक्शन वो स्पेशली अपर आर्म में ही दे सकते थे. उसको आप इंट्रामस्कुलर तो बोलेंगे लेकिन इंट्रामस्कुलर के अपर आर्म में भी मसल मास आप मसल मास आपका कैप्चर्ड है, लेकिन आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते. आप उसका उसका जो लगाने का जगह है उसको आप बटक नहीं कर सकते हो, वो आपका फोर आर्म पर ही लगा होगा. तो कुछ ऐसे इंजेक्शन हैं जो एक स्पेशली एक पर्टिकुलर एरिया में लगाने के लिए. सब्सक्यूटेनियस इंजेक्शन आर यूजुअली एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल वॉल्यूम्स. इसकी डोजेज बहुत कम होती है, जैसे कोविड वाले की भी 0.52 ml ही था, इसका भी वही है 0.52 ml. एंड टू द अदर सरफेस आर्म या अपर सरफेस ऑफ द थाई और अब्डोमन, जैसे आपका शुगर जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, उसका इंजेक्शन आपका बटक सॉरी उसका इंजेक्शन आपका एब्डोमेन एरिया में खुद से भी लगा सकते हैं. उस जहाँ पर मांस इकट्ठा है वहां पे लगा सकते हैं, बट पर्टिकुलर डोजेज के अंदर.
मीन्स आप ये कह सकते हो सब्सटेंटेनियस जो इंजेक्शन है आपके इंट्रामस्कुलर की तरह ही है, बट इसका डोजेज कम हो जाता है। इंसुलिन के इंजेक्शन जो होते हैं, इंसुलिन जब बोलते हैं ना शुगर हो गया तो वो इंसुलिन का डिसबैलेंस ही है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन जो आपके वो उसमें डोजेज कम है बट वो भी इंट्रामस्कुलर की तरह लगता है, तो वही है ये। हम उस साइट को पहले रब करते हैं, साइट बाय रबिंग द स्किन अराउंड द इंजेक्शन कैन ऑल्सो and also by the exercise during the action of administered drug is prolonged injection is made deep to the SC tissue, है ना। देन इज अदर मेथड जो मैंने आपको बताया था इन तीन के अलावा, वो इंट्राडर्मल है, स्किन की लेयर में इंजेक्शंस। अब उसके एग्जांपल्स आप जो कुछ लोग आप फेस पे बोटॉक्स वगैरह कराते हैं, क्योंकि ये मेथड भी बहुत पहले से है लेकिन हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते, तो इसको अब पहले तीन मेथड में हमने नहीं रखा। इंजेक्शन आर मेड स्मॉल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और भी स्मॉल होता है, जैसे 0.1 ml इन द अपर लेयर ऑफ द स्किन, उसको आप लेयर में डाल सकते हैं, जैसे बोटॉक्स के इंजेक्शन, या फिर बोटॉक्स भी नहीं कह सकोगे, हाँ बोटॉक्स के इंजेक्शन जो स्किन को बहुत एज तक आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, या फिलर्स जो होते हैं आपके वो वाले जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस, आपकी स्किन की लेयर के जस्ट नीचे उनको इंजेक्ट किया जाता है। इंट्राडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इज यूज बाय predominantly of local effects. It is also used for vaccine and adjuvant delivery of administrating agents for allergic action. The intra-aerial routes are used for regional delivery of drug for various organs, or the use of vasopressin of GI bleeding. Intra is at earlier infusion increase the drug's delivery or to the area supplied by the infused artery. Intra-aerial infection increased drug delivery to the area supplied fused artery while reducing the access of the drug to the systematic circulation. Erythroid administration route is caused by injecting the drug directly into the lumbar spinal, जैसे कुछ इंजेक्शन आपके स्पाइनल बेस जो स्पेसिफाइड किसी बीमारी के लिए इंजेक्शन होंगे उनकी कैटेगरी अलग हो जाएगी, वो भी पेरेंटल ट्रैक में ही आएंगे, रूट में ही आएंगे, into the subdural space or into the ventral, ensuring the complete bioavailability of drug to the central nervous system. CNS means central nervous system. Erythrical administration is used for the treatment of serious central nervous system infections, including magnesium and for enclosing the spinous anesthesia. जैसे स्पाइन में आप एनेस्थीसिया के इंजेक्शन देते हैं उसको आप एनेस्थीशियल इंजेक्शन, इंट्रा एथिकल इंजेक्शन बोल सकते हैं, ethical injection. Intraperitoneal route in the case of drug is injected directly into the interperitoneal space through the locally anesthetized area, but the Lemicus drug injected intraparenterally include antibodies, anti-cancer agents, मीन्स जैसे आपके बॉडी को पूरी बॉडी को करने के लिए आप बैकबोन जिसको स्पाइन बोलते हैं उसके अंदर इंजेक्शन देते हैं, तो उसकी एक अलग कैटेगरी है। लेकिन आप किसी लोकल एरिया मीन्स अगर आपका सपोज आपके दांत में दर्द है तो दांत भी आपको एक्सट्रैक्ट कराना है या दांत में ही आपको रूट कैनाल कराना, उस केस में आप उसी एरिया को एनेस्थीसिया देंगे, तो उसको बोलते हैं इंट्रापेरिटोनियल रूट। अभी आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि बार बार नेटवर्क आ रहा है, बार बार जा रहा है, तो हम मेजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी हम नेक्स्ट या बायो अवेलेबिलिटी कर लेते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो नेक्स्ट आप नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। बायो मेजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, अगर आपको सुन रहा है तो बायो अवेलेबिलिटी के लिए मेजरमेंट्स में बता देती हूँ। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग कैन बी मेजर्ड इन डिफरेंट वेज विच आर जनरली कैटेगराइज्ड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, फार्माकोनाइटिक पता है इसको बंद कर देना अच्छे से, फार्माकोनेटिक मेथड्स एंड
फार्मोडायनामिक मेथड्स, टू डायन मेथड्स हैं जिनको आप इसको मेजर कर सकते हो। आप बायो अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी मेजरमेंट कितनी एब्जॉर्प्शन है कैसे करेंगे, तो उसके लिए दोनों यही मेथड्स हैं। Pharmacokinetic methods are indirect methods are based on the concept of pharmacokinetic profile reflects the therapeutic effectiveness of the drug. Plasma level time studies and the urinary excretion studies are the important and commonly used as pharmacokinetic methods to determine the bioavailability. The measurement of concentration of a drug in the blood or plasma are considered as an indicator of bioavailability. Urinary excretion studies are useful for drug as an indicator of bioavailability. The urinary excretion studies are useful for for drug considerably extracted unchanged in the urine, like certain peptide diuretics and sulfamides. It is also used in the case of drug that can act as a site of urine. The thermodynamic methods are direct measurement methods of bioavailability. They measure the drug effect and pathological and psychological process. Two important methods of psychodynamic measurement. अब psychodynamic के अंदर भी दो important methods हैं. Those are called therapeutic response and acute pharmacologic response. On the basis of response हम उसको जज करते हैं. ठीक है. अब आज हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और जो थोड़ा सा बीच में बार बार वॉल्यूम जाने की वजह से रह गया है उसको भी मैं एक बार रिकैप दे दूंगी अगले लेक्चर में. ठीक है, तो चलो ठीक है फिर. ओके, गुड इवनिंग टू ऑल. हम अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में कैरी ऑन करेंगे. ठीक है, ओके बच्चा, बाय स्टूडेंट्स. हम्म बंद कर दो, मैं इधर से बंद कर रही हूँ.